Gemi به اسپانون پروگرام بازن. پروگرام استوینز خدمتسمز پیش کرن محمد شابان بٹ تا اختر عباس. پیشکش وسیم فاروق. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. میڈیم ویو 268.8 ایک میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین شام کے 7 بجنے والے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. آکاشوانی سری نگر. اپنی گھڑیاں ملائیے. شہربین ٹائم شام کے 7 بجے ہے. پروگرام شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے. شہربین کے سامعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: لداخ یوٹی کے لیے سپورٹس پالیسی اجرا کی گئی، وادی کے مختلف ندی نالوں میں غیر قانونی کان کنی کا سلسلہ جاری، شہر و دیہات میں خراب پڑی اسٹریٹ لائٹس کا کوئی سدباب نہیں، اور جموں کشمیر کے درجنوں دیہات ابھی بھی برقی راؤ کے منتظر. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر. فون نمبر 9419000258. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. کیا آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی بھی ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیم کا شکار ہو جائیں تو بڈز ایکٹ کے تحت آپ کو ترنت کمپلینٹ فائل کرنی چاہیے. بڈز ایکٹ یہ کیا ہے؟ بڈز ایکٹ یعنی بیننگ آف ان ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیمز ایکٹ 2019 کے تحت اگر کوئی آپ کو لیگل ڈپازٹ اسکیمز میں پھنساتا ہے تو آپ کو اپنے پیسے کی سرکشا کے لیے 1930 پر رپورٹ کرنا ہوگا. مطلب اگر کوئی فراڈ ہو تو بنا دیری کے رپورٹ کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ انلیگل اسکیم میں گیا ہے تو بڈز ایکٹ کے تحت آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ساودھان رہیں کیونکہ سمجھداری ہی سرکشا ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने आज LD सेक्रेटरीट लेह में लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 को बाज़ाबिता इजरा किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने, उनकी फलाह व बहबूद के इक़दामात को तक़वियत देने के लिए और पूरे लद्दाख में खेलों की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने में एक अहम और तारीखी कदम है। समिन वादी के मुख्तलिफ ज़िलों में दरिया और नदी नालों से रेत और बाजरी गैर कानूनी तौर पर हासिल किए जाने का अमल बेदरेग जारी है। ये सच है कि इस काम को रोकने के लिए इंतज़ामिया कभी कभी कुछ इक़दामात करता है, ताहम उनकी उम्र फ़कत चंद दिनों पर मुहित होती है। यही वजह है कि गैर कानूनी कानकनी का माफिया अपने आप को महफूज पाकर अपना काम धड़ल्ले से जारी रखे हुए है। इस अमल से नदी नालों और दरिया का शिराजा इस कदर मुतासिर हुआ है और हो रहा है, जाहिर है कि इससे मज़कूरा माफिया को कोई सरोकार नहीं, ताहम जिनको सरोकार हो सकता है यानी मुतल्लिक़ अफसरान, वो बयानबाजी और जुज़ वक्ती गैर संजीदा इक़दामात के सिवा कुछ नहीं करते। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। गुज़िश्ता कई सालों से वादी के कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी, रेत और बाजरी का काम जोर शोर से जारी है। कुदरती वसाइल की गैर कानूनी खुदाई नकलो अमल से माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे और जिले की करेवात से मिट्टी की खुदाई बड़े पैमाने पर जारी है। बड़गाम जिले में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी और रेत बोल्डर्स निकालने का अमल एक संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जिले के कई इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मी कई बरसों से बिना किसी खौफ और इंतजाम के इजाजतनामे के बगैर शदमत से जारी है। माफिया वालों ने जिले की जरखेज करेवा में कानून की दजियां उड़ाकर रेत, बोल्डर्स, बाजी और मिट्टी निकालकर न सिर्फ जरखेज जमीन को तबाह कर रहे हैं बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन में भी शदीद बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि सरकारी ढांचों जिनमें रेलवे, रिंग रोड और दीगर बुनियादी ढांचे के मनसूबों के अलावा ईंट भट्टों और स्टोन क्रिस्टों के लिए भी रेत और मिट्टी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बकौल लोग की गैर खुदाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा न सिर्फ मुनासिब इजाजतनामों के बगैर किया जा रहा है बल्कि ये अमल मज़कूरा कवायद ज़वाबित की खुली और बेखौफ खिलाफ वर्जी भी है। जिन इलाकों में मिट्टी, बोल्डर्स और रेत की खुदाई जोर शोर से जारी है, इनमें बनगाम, रडबुक, वाहपुरा, न्यू कॉलोनी, मखामा, चायरा, बुदरन, सुफपुरा, तेकिया फारूक, औरवा, बीरवा, पेट मखामा, पालर, वुतरवनी, डडिना के अलावा चाडोरा की गवरपुरा, पांजन, कुजवेरा, कुलित्र और सुमनाग में ये सरगर्मियां अपने उरूज पर है। मकामी लोगों का मानना है कि गैर कानूनी खुदाई की शिकायत करने पर ये अमल कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, ताम कुछ ही दिनों के बाद माफिया वाले ये काम दोबारा शुरू कर देते, जिस पर अवामी हल्कों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक इस गैर कानूनी काम में चंद मकामी अफराद और महकमा माल और जियोलॉजी के एहलकार भी शामिल हुए हैं। लोगों का मजीद कहना है कि इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने के सबब ये लोग इस काम को जारी रखे हुए हैं। चढ़बुक, वाडवन और नाजीगाम के लोगों ने शहरबीन को बताया कि मिट्टी से भरी टम्पर न सिर्फ यहाँ के फजा को आलूदा करते हैं बल्कि उसकी वजह से मकामी लोग सांस की बीमारी में मुबतला हो रहे हैं। उधर पेटमकामा, पारीपुरा, वतरवनी, बटपुरा, पांजन, बुदरन और औरवा के लोगों ने बताया कि मज़कूरा इलाकों में यह सिलसिला कई सालों से जारी है और कहा कि नदी नालों की हिफाजत के लिए अगरचे कई महकमों की जिम्मेदारी है, ताम महकमों की तरफ से माफिया वालों के साथ साजबाज की वजह से ये कारोबार शिद्दत से बढ़ता जा रहा है। शहरबीन ने इस हवाले से जब DMO बड़गाम मोहम्मद नदीम भट्ट से पूछा, उन्होंने गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया और महकमा की जानिब से पिछले 2 महीने से किसी किस्म का कोई इजाजतनामा जारी नहीं किया गया। बकौल DMO रवां साल के दौरान जिले में 515 सीजर्स करके 54 FIRs भी दर्ज किए गए, जबकि 92 लाख से जायद जुर्माने के तौर पर गाड़ियों से वसूल करके 60 से जायद LNTs और JCB मशीनों को अपनी तहवील में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे में हुकाम और बाशूर अवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे आकर इस गैर कानूनी काम पर रोक लगाने में अपना मस्बत रोल अदा करे ताकि नई नस्ल को तबाही का सामना न करना पड़े। यूनुस पर्रे की रिपोर्ट आपने सुनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार नौजवानों से किए गए अपने सभी वादे निभाने में नाकाम हो चुकी है, बिलखुसूस रोज़गार की फराहमी के वादे। उनके बकौल वादी कश्मीर के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल सनत मेवा सनत को तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ावा देकर इससे नौजवानों का मुस्तकबिल जोड़ने के लिए और जोड़े रखने के लिए बिलखुसूस हुकूमत चंदा संजीदा नहीं है। 2001 की सरकार के मुख्तलिफ महकमों में डेली वेजर और कैजुअल लेबर की हैसियत से काम करने वाले हज़ारों नौजवान, जिन्हें उम्मीद थी कि अवामी सरकार के वजूद में आने के बाद से उनकी बाकायदगी जल्द मुमकिन होगी, आज भी गैर यकीनी का सामना कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब्दुल गनी वकील ने शहरबीन से बात करते हुए मजीद बताया।
जम्मू कश्मीर में बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन से पहले इस प्रॉब्लम की तरफ हल करने की तरफ तवज्जो देने का यकीन दिया था। लेकिन भर्ती करने के बजाय सरकार जो है, मौजूदा सरकार, उमर सरकार, कई महकमों में कई मुलाजिमों से, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल पर काम कर रहे थे, एडहॉक पर काम रहे थे, डिसएंगेज किया जा रहा है। कई सालों से वो वहाँ काम कर रहे हैं और रिटायर्ड अफसरों को ये वजह बना के कि उनमें एक्सपीरियंस है तैनात किया जा रहा है। एक अलमिया है। तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे जिनको उम्मीदें हैं, पढ़े लिखे हैं? और आप हैरान हो जाओगे कि कई सालों से डेंटल डॉक्टर्स तैनात नहीं हो रहे हैं। करीब करीब जम्मू कश्मीर में 7,000 बेकार डेंटल डॉक्टर्स है, कोई पूछने वाला नहीं है। 60,000 जो डेली वेजर है, उनकी वजह से बहुत से महकमे चल रहे हैं। पीएचई में महकमा उनकी वजह से चल रहा है, पावर महकमा डेली वेजेस की वजह से चल रहा है, जंगलात डेली वेजेस की चल रहा है। बहुत से महकमे वो नॉन फंक्शनल होंगे अगर ये बेचारे काम नहीं करेंगे। 10-20 साल से वो तड़प रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन अमली तौर कुछ उनके लिए नहीं किया जा रहा है। इसी तरह एक और बड़ी मुसीबत बेचारे उन लोगों की आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, उनको कई महीनों से सैलरीज ही नहीं मिल रहे। और उनके साथ ही जो हमारे गरीब लोग हैं, विडोज हैं, बेवा लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड एज जो लोग हैं, उनको भी कहीं महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार कहाँ है? सरकार को तो चाहिए भैया रिक्रूटमेंट प्रोसेस तेज करें। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इंडस्ट्री हजारों बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं, फ्रूट इंडस्ट्री, वो भी ठप होकर आ गई है। अगर उसकी तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, और अगर सरकार का हाल यही रहा फ्रूट इंडस्ट्री के कहीं, तो तकरीबन हजारों लोग बेकार हो जाएंगे। इशफाक साहब, सोपोर फ्रूट मंडी बड़ी मशहूर फ्रूट मंडी है, नंबर 1 है। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई सरकारी जूस फैक्ट्री नहीं है जहाँ C ग्रेड D ग्रेड जो एप्पल है वो जूस निकाल के मदद हो सकता है फ्रूट ग्रोवर्स को। कोई नहीं उनको पूछ रहा है, कोई इंसेंटिव उनको नहीं दी जा रही है। हालांकि फ्रूट इंडस्ट्री नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से, टर्माइल की वजह से बिल्कुल खसारे में चल रही है। सरकार को चाहिए था तो उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए, उनको KCC लोन माफ किया जाए, लेकिन सरकार को ये परेशानी नहीं। सरकार ज्यादा जो निर्भर है, डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा दी जा रही है, लेकिन जो लोगों को वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। और सबसे बड़ी जो अहम बात मुझे आपसे कहनी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कई जो लिस्ट है उसके जरिए कलदम करार दिए गए, उनके जो चेंज किए गए डेट्स, जिन्होंने मुख्तलिफ हमारे बच्चों ने फार्म भर दिए थे, इसलिए कि पेपर्स लीक हो गए हैं, इसलिए इसमें धांधली हुई है। लेकिन अगर ये सरकार ने किया तो आज तक किसी को सजा दी गई, किसी को इस सिलसिले में कार्रवाई की गई? पेपर्स क्यों लीक हो गए, क्यों चेंज डेट करना पड़ा? सरकार पूछते ही नहीं है। इसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, बल्कि चीफ मिनिस्टर से आग्रह करता हूं कि आप देखिए क्यों नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेरोजगारी के मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का सरकार से मुतालबा। इधर PDF के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस फैसले का खैर मकदम किया है कि रवा माली साल के दौरान बिजली टैरिफ में कोई अमूमी इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला आवाम के लिए बड़ी राहत है। हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि बिजली नरखों में मुजवज़ा इजाफे से आवाम पर माली बोझ बढ़ जाता, ताहम हुकूमत के इस इक़दाम से शहरी और देही दोनों इलाकों के सार्फिन को फ़ायदा होगा। दरअसल MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज अपने अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत अबूरा ब्लॉक के मुख्तलिफ देहात का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हर्द अबूरा में ज़ेर तामीर खेल के मैदान का मुआयना किया और मुतल्लिका महकमे को हिदायत दी कि बकाया कामों की तकमील के लिए मुफस्सल तखमीना तैयार करके सौंपा जाए ताकि मैदान जल्द अज जल्द मकामी नौजवानों के लिए खोला जा सके। उन्होंने अबूरा अस्पताल में जारी तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया और काम को हस्ब मेयार और बरवक्त मुकम्मल किए जाने की हिदायत दी। बादज़ा MLA मौसूफ ने गुंड दालवाश, मलूरा, बोनशारन, लाड़कीपुरा और अल्लाहपुरा में अवामी दरबार मुनक़िद किया, जहां उन्होंने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई।
इधर आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुंड नौगाम सोनावारी में दिलशाद कल्चरल फोरम की तरफ से मनकबती मुशायरा मुनाकिद किया गया। इस सिलसिले में होने वाली तकरीब के दौरान गुलफाम बारजी को शौकत शहरी एजाज से सरफराज किया गया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, रजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम्स और अनऑथराइज्ड फाइनेंस कंपनीज कभी भी किसी को भी निशाना बना लेती हैं, लेकिन शुक्र है कि सचेत है। सचेत? पर ये क्या है? सचेत RBI, सेबी और IRDAI का ज्वाइंट पोर्टल है जहां आप किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, NBFC, चिट फंड या स्कीम की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने शहर में एक्टिव फ्रॉडुलेंट ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी पैसे इन्वेस्ट करने को बोले तो पहले मैं सचेत पर चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल, बस पोर्टल पर जाएं, नाम सर्च करें और तुरंत पता लग जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है या फेक। और तो और आप सस्पिशियस एक्टिविटी की ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सेफ, फ्यूचर सेट। विजिट sachet.rbi.org.in। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि अवंतीपुरा को ज़िले का दर्जा दिए जाने का मुतालबा करते हुए आज प्रोग्रेसिव सिटीजन्स फोरम नामी एक रजाकार ग्रुप ने बताया कि अवंतीपुरा को एक तारीखी हैसियत हासिल है, जबकि यहाँ एम्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे भी मौजूद हैं और ये इलाका त्राल, पामपुर और काकपुरा हलकों के नज़दीक भी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अव्वलीन फुर्सत में इसे ज़िले का दर्जा दे। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही काठी दरवाज़ा श्रीनगर में अकीदत व एहतराम से मुनाकिद की जा रही है, जबकि वादी कश्मीर की दीगर गुरुद्वारों में भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। समन पिछले 10-12 साल के दौरान जम्मू कश्मीर के शहरों और कस्बाजात के साथ साथ देही इलाकों में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम बड़े पैमाने पर म्यूनिसिपल कमेटियों और काउंसिलों के अलावा महकमे देही तरक्की और ज़िला तरक्याती काउंसिलों की तरजीहात में शामिल रहा है। अवामी हलकों की तरफ से इन इक़दामात की पजीराई भी होती रही है, ताहम लोग इस ज़िम्न में बड़े तवातुर से एक शिकायत करते रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव और मरम्मत पर कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती है। इसका बयन सबूत इस बात से मिलता है कि दर्जनों कस्बाजात और देहात के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकाजात में जो लाइट्स ख़राब होती हैं
उन्हें ठीक कराने या उन्हें बदलने के लिए बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। नतीजा ये कि आज उन तमाम इलाकों के लोग शाम के बाद घरों से बाहर आने में खौफ महसूस करते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से अकरमुल हसन। जनूबी जिला कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में नस्ब शुदा स्ट्रीट लाइट्स खराब हो जाने की वजह से मुतल्लिका आबादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों का कहना है कि ये स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता कई बरसों के दौरान बल्दियाती इदारे ने लगवाई थी, लेकिन रख रखाव के फुकदान की वजह से इनमें से बेशतर लाइटें एक एक करके खराब हो गई। ताहम मुतल्लिका इदारे की जानिब से इन लाइटों को ठीक करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है और ना ही इस ज़िम्न में अवामी शिकायत की तरफ कोई तवज्जो दी जाती है। बाशिंदगान का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब रहने की वजह से शाम होते ही सड़कें गुप अंधेरे में डूब जाती है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पोलू, मालवन, आरीगोतू, छमकुंड, दिवसर, केलम, जंगलपोरा, चौगाम, कुंड इलाकों में हर चौराहे पर एक से ज्यादा स्ट्रीट लाइट के खंबे मौजूद है और हर साल नई नई लाइट अलॉट की जाती है। मामूली खराबी की वजह से ये फिर बेकार पड़ी रहती है। जिला के सियासी और समाजी कारकुन जफरुल्लाह वानी ने शहरदीन को बताया कि उन्होंने ये मामला पहले भी जिला इंतजामिया के साथ उठाया है और आज अब शहरदीन के जरिए आला हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा भी किया है। गुज़श्ता साल नस्ब की गई स्ट्रीट लाइटों में से ज्यादातर एक साल से पहले ही खराब हुई थी। मुकामी लोग इनको ठीक करने का मुतालबा कर रहे हैं। कुलगाम से अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। सबन वादी कश्मीर में अगरचे अभी मौसम खुश्क है, ताहम शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड होने से सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है। गुलमर्ग और पहलगाम में कम अज़ कम दर्जा हरारत बेतरतीब -6.5 डिग्री सेल्सियस और -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस और कस्बा काजीगुंड में शबाना दर्जा हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर श्रीनगर के HMT इलाके में कल शब आग की एक वारदात में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि HMT के सेक्टर 8 में कल शब एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मकान को अपनी लपेट में लिया। ताहम महकमे फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। जम्मू कश्मीर में घर घर बिजली पहुंचाने के मकसद से पिछले कई बरस से काम जारी है। ये सच है कि इस समत में काबिल जिक्र दर्जे की कामयाबी भी पाई जा चुकी है। अलबत्ता ये कहने में कोई तामुल नहीं कि अभी भी मुख्तलिफ ज़िलों में कई ऐसी बस्तियां हैं जिनकी आबादी